Hello children, welcome again to your maths class. I am Poonam Bagga back with you. We are studying chapter 6 triangles from class 10th maths. These days we are doing exercise 6.4. In our previous video we started this exercise and completed the first 4 questions from it. Today we will be completing this exercise and take up all its remaining questions, question 5 to 9. All these questions are based on the areas of similar triangles, and remember that the ratio of the areas of similar triangles is equal to the square of the ratio of the corresponding sides of the two triangles. And also while doing these questions, first of all read the question very carefully. सबसे पहले question को बहुत ध्यान से पढ़िए. Then if the figure is not given in the question, and since these are geometrical questions, then you have to draw the figure as per the question. Question को पढ़िए और उसके according अपना figure खुद बनाइए और फिर आप relate कीजिए whatever is given in the question and whatever is required to prove in the question, and then you will get a clear vision how to proceed in such questions. So let us start with question number 5 here. We have D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. Here we are talking about triangle ABC और यहाँ पर इनकी sides जो हैं उनके midpoints दिए गए हैं D, E और F. तो पहले एक triangle draw करते हैं हम. चलिए बनाते हैं. Let this be the triangle ABC. Let us name it here ABC. और अब आप देखिए D मिड पॉइंट दिया गया है साइड AB का. दिस इज साइड AB एंड लेट दिस बी द पॉइंट D, द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB. Then E is the midpoint of BC. Here we can take this point E as the midpoint of BC, and then we have to take F as the midpoint of CA. This is side CA and let this be the point F, the midpoint. And then we have to join these points to get one triangle. In this way, this is DF, this is DE, and then this is EF. This is the triangle. Now this is the figure related to this question, and then we have to here find the ratio of the areas of triangle DEF. देखिए सेंटर में ये triangle DEF बन रहा है, ये triangle, इस triangle का area और फिर ये जो बड़ा triangle है ABC, complete triangle ABC, इन दोनों का हमें ratio find out करना है, दोनों triangles के area का. यहाँ पर हम एक theorem use करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी और वो थी मिड पॉइंट थ्योरम. और वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के, इफ़ वी हैव वन ट्रायंगल और ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन किया जाए, मिलाया जाए, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है. तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि D और F दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं साइड AB और AC के, तो यहाँ पर DF जो है ये पैरेलल हो जाएगी जो थर्ड साइड है BC इसके, और साथ ही साथ ये लेंथ में हाफ होगी BC के. दिस इज सेड टू बी द मिड पॉइंट थ्योरम. In class 9th you must have learnt. According to this theorem, DF will be parallel to BC and half of it. इसी तरह से E और F भी मिड पॉइंट्स हैं अपनी अपनी साइड्स के, तो EF will be parallel to AB and half of it. Similarly here DE will be parallel to AC and half of it. We will be applying this theorem and then we will be finding this ratio. Let us write the fair solution. सबसे पहले आप लिखेंगे whatever is given in the question, वो आप लेंगे यही क्वेश्चन से. क्या दिया गया है? D, E and F are the midpoints respectively of these sides of triangle ABC. तो क्वेश्चन से ही हम ले लेते हैं. We write here given D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC, and here we have to find the ratio of area of triangle DEF to the area of triangle ABC. This we have to find, and this is the figure. Now we start finding it. We make some space here. Yes, solution. How to find? सबसे पहले हम लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. According to मिड पॉइंट थ्योरम, the line segment joining the midpoints of any two sides
of a triangle is parallel to the third side and half of it. According to this theorem, now we can relate here. This implies that this length DF will be parallel to BC, and so it will be half of BC. ये समझ में आ रहा है आपको? DF will be half of BC. यहाँ से आप इन साइड्स का रेशो ले सकते हैं. DF अपॉन BC, ये रेशो आपको मिल जाएगा इक्वल टू 1/2. Let this be the first result. Then we can say here that DE, this DE will be parallel to AC. DE, here we should write also DE will be parallel to AC and DE will be half of AC. This implies that the ratio DE upon AC, this will be equal to 1/2. This implies this ratio will be equal to 1/2. Let this be the second result. And similarly, you can see here EF, this side will be parallel to AB. EF, it will be parallel to AB. देखिए आप, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं E और F, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होता है थर्ड साइड के. ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है E और F, और थर्ड साइड कौन हो गई अब? AB. तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और साथ ही साथ लेंथ में हाफ ऑफ इट, half of AB. This implies further that the ratio EF is to AB. This is equal to 1/2. Let this be the third result. Now from 1, 2 and 3, what do we get? From 1, 2 and 3, we are getting DF upon BC. This is equal to DE upon AC. And this is further equal to EF upon AB. देख रहे हैं आप, और ये तीनों रेशो इक्वल हैं 1/2 के. और इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हैं. ऑल द थ्री रेशोज आर इक्वल टू 1/2. और ऐसा होने पर हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो equal है. So here we can say that this implies triangle DEF, this is similar to which triangle? Now we will have to write the next name very carefully. देखिए यहाँ पर DE और AC, और यहाँ से EF और AB. तो A कॉमन दिख रहा है हमें, A को हम लेंगे सेंटर में, और DE के लिए यहाँ पर आएगा C, और यहाँ से हम लेंगे B. देखिए क्या ये बैठ रहा है, DE और AC बिल्कुल ठीक है, EF और AB, EF और AB बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज द राइट नोटेशन. एंड नाउ हियर वी कैन राइट बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. These two triangles are similar. और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इनके एरियाज का रेशो क्या हो सकता है? सोचिए आप, हमने बात की हुई है, ये प्रूफ आपको दिया हुआ है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. दिस इम्प्लाइज दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशो होगा वो होगा इक्वल टू द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देन इट्स स्क्वायर. अब करस्पॉन्डिंग साइड्स आप कोई सी भी ले लीजिए, इसमें कोई सा भी पेयर ले सकते हैं. लेट अस टेक इट एज EF अपॉन AB होल स्क्वायर. करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है उसका स्क्वायर के इक्वल होगा द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. ये रूल तभी अप्लाई होता है जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हों. तो पहले हमने इनको सिमिलर प्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का जो रेशो होगा वो होगा इक्वल टू द स्क्वायर
ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। और अब आप देखिए ये रेशियो कितना है 1/2, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट द रिक्वायर्ड रेशियो is 1:4. Required ratio is 1:4 और आप फिगर से भी देख सकते हैं इस ट्राइंगल ABC के 4 पार्ट्स हो रहे हैं। देखिए आप 4 पार्ट्स हो रहे हैं और इन 4 पार्ट्स में से ट्राइंगल DEF क्या है, 1 सिंगल पार्ट है। सो ऑलवेज यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC और वही यहाँ पे कह रहे हैं कि एरिया का रेशियो होगा 1:4। गेटिंग इट? तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ की और फिर हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं और सिमिलर होने से इनका एरियाज़ का रेशियो इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, वो हमें मिल रहा है 1/2 एंड सो 1/2 होल स्क्वायर इज़ 1/4 एंड सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 1:4. नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 6 हियर. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. अब यहाँ पर फिर से 2 similar triangles लेने हैं हमें और फिर इस बार उनके medians भी लेने हैं. क्या कहा जा रहा है? हमें ये प्रूव करना है कि 2 similar triangles के एरिया का जो रेशो है वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस. करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल तो हमें पता है. अब हमें ये प्रूव करना है कि यही रेशियो एरियाज़ का मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होता है, जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस होते हैं दोनों ट्राइंगल्स की. इसको फिगर से भी समझते हैं. लेट अस ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स. लेट दिस बी ट्राइंगल ABC and let this be the median and then let us draw triangle PQR and let this be the median. जब भी आपको कोई रिजल्ट प्रूव करना हो, ट्राइंगल से रिलेटेड है तो ट्राइंगल्स ड्रॉ करने होंगे. हम 2 ट्राइंगल्स देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है. ABC और PQR हमने इनको नाम दे दिया है और इसको नाम दे देते हैं D हियर एंड हियर M. तो ये AD मीडियन हो गया इस ट्राइंगल का और यहाँ से PM इस ट्राइंगल का मीडियन है. अब हमें प्रूव क्या करना है कि इन ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो है, ट्राइंगल ABC का एरिया और फिर ट्राइंगल PQR का एरिया, इन दोनों एरियाज़ का रेशियो हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल तो होता ही है. लेकिन अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये करस्पॉन्डिंग मीडियंस जो हैं AD और PM, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है और हमें ये पता है कि ये एरिया इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के. करस्पॉन्डिंग साइड्स आप यहाँ से AB और यहाँ से PQ ले सकते हैं. तो AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ये तो हमें पता है. लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि यही रेशियो इन मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होता है. तो एक्चुअली हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो इजीली ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा. अब जब हमें यहाँ इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब हमें AB अपॉन PQ को इक्वल प्रूव करना है AD अपॉन PM. ये हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं और इसका मतलब हमें ये साइड्स के रेशो इक्वल प्रूव करने हैं. वो कब होता है? जब हम देखें कि इन साइड से बनने वाले ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो अपने आप उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल जाएंगे और उसी से ये रेशो इक्वल मिल जाएंगे. तो जब भी आपको इस तरह से कोई 2 रेशो इक्वल प्रूव करने हो तो आप क्या कीजिए कि इनकी जो साइड्स हैं फिगर में उनको विजुअलाइज कीजिए और फिर आइडेंटिफाई कीजिए उन ट्राइंगल्स को जिनकी की ये साइड्स हैं. जब आप उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो अपने आप ही उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वल रखने से आपको ये रिक्वायर्ड रेशो इक्वल मिल जाएंगे. तो अब आप देखिए यहाँ पर AB और PQ, देखिए AB ये साइड है और यहाँ से PQ ये साइड है. इफ़ यू विजुअलाइज हियर and then AD is this one and PM is this one. तो अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हमें कौन से 2 ट्राइंगल्स लेने चाहिए जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना होगा और फिर हमें ये रेशोज़ इक्वल मिल जाएंगे. ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये इन साइड्स, ये 2 ट्राइंगल्स, तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ये हमें इक्वल मिल जाएंगे और जैसे ही ये इक्वल होंगे तो जो ये एरियाज़ का रेशो है पहले इसके इक्वल था वो अपने आप ही इसके इक्वल भी हो जाएगा AD अपॉन PM होल स्क्वायर के. मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के इक्वल भी
प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब इसी सब को हम फेयरली प्रेजेंट करेंगे। आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? वॉट एवर इज़ गिवन। क्या दिया है? हमें दिए हैं 2 सिमिलर ट्राइंगल्स और फिर उनके मीडियंस भी हमें लेने हैं। सो लेट अस टेक देम हियर। Let triangle ABC be similar to triangle PQR and let AD and PM be the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. Here we have the two triangles and we have to show that the ratio of the areas of these two triangles is equal to the square of the ratio of the medians. AD है median इस triangle का और PM है इस triangle का median और हमें ये areas का ratio prove करना है equal to the square of the ratio of the medians. So here we will start with the given result which is triangle ABC is similar to triangle PQR. यहाँ से हम शुरू करेंगे. Let us take the next page here. We write the proof here. Since triangle ABC is similar to triangle PQR, this means that the ratio of their areas, area ABC triangle and area ऑफ ट्राइंगल PQR, ये जो दोनों एरिया हैं ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा. दिस वी ऑलरेडी नो. करस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले लेते हैं AB और PQ, यहाँ से इनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा. लेट अस गिव इट नंबर 1. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दिस रेशो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द मीडियंस. तो अभी हमें इसे AD अपॉन PM को इक्वल प्रूव करना है AB अपॉन PQ के. हम क्या चाहते हैं कि AD अपॉन PM जो है ये इक्वल आ जाए AB अपॉन PQ के. अभी हमने डिस्कस भी किया था. तो अब हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने होंगे जिनकी ये साइड्स हैं. सब अभी डिस्कस किया था वैसे ही. देखिए AB ये रही और PQ ये रहा, AD ये रही और PM ये रहा. तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे और उससे हम बता पाएंगे कि ये दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं. तो कैसे अब सिमिलर प्रूव करेंगे इनको? देखिए यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM. बताइए कैसे प्रूव करेंगे? आप देखिए यहाँ पर ओरिजिनल ट्राइंगल्स ABC और ट्राइंगल PQR दोनों ही सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. यहाँ से एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. तो पहले तो यही लिख लेते हैं एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. गिव द रीज़न. सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. इस रीज़न से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. अब क्योंकि दोनों ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे. और अब ऐसे में आप लीजिए ये साइड AB और यहाँ से PQ और ये साइड BC और यहाँ से QR. इन दोनों के रेशो इक्वल होंगे. देखिए आप ऑल्सो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी हैव BC अपॉन QR. वाई? सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. But here we are not interested in this complete length BC. हम पूरी साइड BC में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसकी आधी में इंटरेस्टेड हैं. ये साइड BD, क्योंकि हम ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं? ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम पूरी साइड QR में इंटरेस्टेड नहीं है, इसके हाफ QM में इंटरेस्टेड है. और ये हाफ क्यों है? रिकॉल हियर दैट AD इज द मीडियन. और क्योंकि AD मीडियन है तो वो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है. D मिड पॉइंट हो गया BC का और मिड पॉइंट होने से BD और DC दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और दोनों BC के आधे आधे हो जाएंगे. तो BD जो है BC की हाफ लेंथ हो गई. इसी तरह से PM मीडियन है तो M मिड पॉइंट हो गया QR का और ऐसे में QM जो है हाफ हो जाएगा लेंथ QR का. सो हियर वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ. This can be written as half of BC upon half of QR. हम ऊपर नीचे दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रेशो को. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमने दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया. और ऐसा करने पे हमें क्या मिल रहा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू व्हाट इज हाफ ऑफ BC? इट इज BD. एंड व्हाट इज हाफ ऑफ QR? इट इज QM. एंड यू कैन गिव द रीज़न within the bracket. Since D and M are
midpoints of BC and QR respectively. ये इनके मिड पॉइंट्स हैं और इसलिए हम इजीली लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ BC इज़ BD एंड हाफ ऑफ QR इज़ QM. अब ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, जो दो ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के दो पेयर्स हमें इक्वल मिल रहे हैं. एक तो AB अपॉन PQ ये इक्वल मिल गया और यहाँ से BD अपॉन QM इक्वल मिल गया और ये सेंटर एंगल इंक्लूडेड एंगल दोनों ही साइड्स के बीच का हमें इक्वल मिल गया. तो SAS रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम सिमिलर लिख सकते हैं. सो वी राइट हियर दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by SAS similarity. बात आ रही है समझ में. और अब हम यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं. हालांकि हमारे पास ये दोनों पेयर्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो इक्वल हैं, पर अभी यहाँ पर थर्ड पेयर रहता है. हम चाहते हैं कि थर्ड पेयर जो मीडियंस का है, देखिए AD और PM, अब वो भी तो इन रेशियोज के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए. सो फ्रॉम हियर वी कैन से, लेट मी मेक सम स्पेस, यस, दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ, यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले रहे हैं AB PQ और यहाँ से AD, यहाँ से PM, दिस विल बी इक्वल टू AD अपॉन PM. गिव द रीज़न हियर. Since corresponding sides of similar triangles are proportional. Because of this we can say that these two ratios are equal. Let us give this result number 2. अब आप देखिए रिजल्ट 1 पर चलिए. रिजल्ट 1 में हम क्या देख रहे थे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो AB अपॉन PQ होल स्क्वायर के इक्वल था और AB अपॉन PQ हमने प्रूव कर दिया है AD अपॉन PM के. और इससे हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो, हियर वी राइट फ्रॉम 1 and 2 we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This will now be equal to AD upon PM whole square, क्योंकि AB upon PQ is equal to AD upon PM and so this ratio will be equal to AD upon PM whole square and hence we have proved the required result. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. What we were given? We were given two triangles AD और PM, ये दोनों मीडियंस हैं और हमें प्रूव करना है कि इन दो ट्राइंगल्स जो कि सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल्स का जो एरियाज़ का रेशियो है वो इक्वल है मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के. ये हमें प्रूव करना था. तो हमने देखा कि जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं इनके एरियाज़ का रेशियो इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. लेकिन अब हमें AB अपॉन PQ को इक्वल प्रूव करना है AD अपॉन PM के मीडियंस के रेशियो के इक्वल. ऐसे में हमने देखा कि ये लेफ़्ट साइड वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा और फिर हमने देखा कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमें इक्वल मिल रहे हैं. AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो ओरिजिनली दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इससे मिल रहा है. हमने इन साइड्स को हाफ किया तो उससे ये जो कलर्ड साइड्स हैं ये भी हमें इक्वल रेशियो में मिल गई और ऐसे में SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स लेफ़्ट साइड वाले प्रोपोर्शनल हो गए, सिमिलर हो गए और ऐसे में हम ये रेशियोज़ इक्वल लिख पाए. AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM मीडियंस के रेशियो के इक्वल हो गया ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और यहाँ से हमें दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इक्वल मिल गया मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के. गेटिंग इट? नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन 7. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. इसको समझते हैं. We will have to draw its figure also. यहाँ बात हो रही है एक स्क्वायर की. पहले तो एक स्क्वायर बनाते हैं. Let us take one square. Let this be a square. Also give it a name A, B
सी डी। और इसके बाद यहाँ हम ड्रॉ करेंगे इसका डायगनल, डायगनल ए सी ड्रॉ करते हैं, ए की डायगनल ड्रॉ करेंगे। और अब क्या कहा जा रहा है देखिए, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पर एक साइड ले लीजिए कोई भी ट्राइंगल की, लेट अस टेक इट एज बी सी। बी सी पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे, जो साइड बी सी की लेंथ है उतनी ही लेंथ के दो और साइड लेकर यहाँ से हम बनाएंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल कुछ इस तरह से। लेट इट बी से पॉइंट Q। इसके बाद हमें ये देखिए, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगनल्स, ये डायगनल AC ड्रॉ कर दिया। अब डायगनल AC पर भी हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है, तो इसके लिए लेट अस ड्रॉ वन इक्विलैटरल ट्राइंगल हियर टेकिंग AC एज वन ऑफ इट्स बेस। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी लेंथ में, तो AC के इक्वल ही लेंथ में यहाँ से एक साइड आएगी और इसी तरह से इसी के इक्वल एक साइड और आएगी। एंड लेट अस नाउ गिव इट द नेम P। तो अब आपको दो ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है साइड BC पर, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पर ये हमने डिस्क्राइब किया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, और फिर डायगोनल पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया गया है, वो है ये ट्राइंगल, दिस वन। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ जो ये है, ये हाफ है उस ट्राइंगल के एरिया के जो डायगोनल पर बनाया गया है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज ACP। ये हमको प्रूव करना है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ के हमने फिगर बनाया और क्या प्रूव करना है वो भी रिजल्ट हमने लिख लिया है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, ये लेंथ्स, साइड BC की लेंथ और डायगोनल AC की लेंथ, इन दोनों के बेसिस पे ही हमें ये साइड्स भी पता चल रही हैं। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो जो लेंथ यहाँ पर BC की होगी वही लेंथ यहाँ पर CQ की और BQ की भी होगी। इसी तरह से जो लेंथ यहाँ पर AC की होगी वही ये दोनों साइड्स की भी होगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब हमें कनेक्शन चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर में और डायगोनल ऑफ स्क्वायर में, और हमें पता है कि एक स्क्वायर में, लेट अस वंस अगेन ड्रॉ वन स्क्वायर एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, लेट मी ड्रॉ वन स्क्वायर मोर। बताइए क्या कनेक्टिविटी होती है डायगोनल की लेंथ में और साइड की लेंथ में एक स्क्वायर के केस में। मान लीजिए कि इसकी साइड है A, तो ये साइड भी A हो जाएगी, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है डायगोनल से लेकर यहाँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर यू विल गेट दिस वन एज स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज मिलता है, वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दिस इज नाउ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर इज A एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज स्क्वायर रूट 2, एंड सो दिस डायगोनल इज ऑलवेज साइड रूट 2 लेंथ। इसकी लेंथ हमेशा साइड रूट 2 होती है, और इस केस में हमने A ली है तो A रूट 2 हो जाएगी डायगोनल की लेंथ। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम ये समझते हैं अगर हमारी इसकी साइड है A यूनिट्स तो ये हो जाएगी A रूट 2, और अब दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। हमें पता है सभी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, साइज छोटे बड़े होते हैं पर ये सिमिलर होते हैं क्योंकि इनके एंगल्स करस्पॉन्डिंगली क्या है, 60 डिग्री के हैं, सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए ये सिमिलर होते हैं। और यहाँ पर हमें जो इनकी साइड्स हैं उनकी लेंथ का भी कुछ पता चल गया, आइडिया मिल गया। ये A है तो ये A रूट 2 है, तो अब इनका एरिया का रेशो क्या होगा, देखिए ये एरिया कितना लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें क्या मिल रही हैं, अगर हम इनका रेशो लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP,
तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें क्या लेना है, रेशो। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के कैसे लेंगे हम, a और ये हो गई a√2, इनका रेशो लेना है, और स्क्वायर, a से a कैंसिल, 1/√2 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज 1 स्क्वायर, इट्स 1 and √2 square is 2. So the ratio will be 1/2 और यही तो हमें यहाँ लाना है। ये यहाँ से आप ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इसको हम फेयरली लिखते हैं। वी टेक द नेक्स्ट पेज। हम पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है, और क्योंकि एक्चुअली हमें क्वेश्चन में नेम नहीं दिए, हमने अपने मन से ये ABCD और ये P और Q नाम दिया है, तो इनको हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। लेट अस राइट हियर, लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड A यूनिट्स एंड लेट triangle PAC be described on diagonal AC of square ABCD। आप देखिए यहाँ पर ये PAC हमने diagonal AC पर बनाया है, equilateral triangle PAC, तो वही बता रहे हैं कि let triangle PAC be described on diagonal AC and then let triangle BCQ be described on side BC। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया साइड BC पर, ये triangle BCQ, और यहाँ फिगर आप देख सकते हैं। Then we have to prove area of triangle BCQ. This one is half of area of ABC. ठीक है, now we begin the proof here. Start the proof. First of all, side of square, we are taking it as A units. Then length of diagonal of square, which is AC here, this will be equal to A√2 units। बात आ गई समझ में। अब हमें क्या कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के केस में वी नो all equilateral triangles are similar. This implies triangle BCQ is similar to triangle ACP. Now since these are equilateral triangles, so you can take the names in any order. It does not make any difference in case of equilateral triangles because all the sides are equal in length, and so now since these are equilateral triangles, these are similar, और जैसे ही ये triangles similar हो गए, इनके areas का ratio क्या हो जाएगा, इनकी corresponding sides के ratio के square के equal. So this implies that area of triangle BCQ upon area of triangle ACP, this will be equal to the ratio of corresponding sides. You can take any sides because all are equal. So BC upon AC whole square. You can write it in this way, and you know the length we have taken for the square as A units. So we can write here as A, and for diagonal we know it is A√2 in length, side √2, and so this will be in this way. A upon A√2 whole square. Cancel this A by A, you will be left with 1 upon √2 whole square, and this is equal to 1 upon 2. √2 square is 2 itself, and so here from this result we can write area of triangle BCQ is equal to half of area of triangle ACP. यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में से लेकर हमने यहाँ राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और यही तो वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है. गेटिंग इट? नाउ वंस अगेन हैव अ लुक. हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया था और स्क्वायर की एक साइड पर एक ट्रायंगल बनाया गया और डायगोनल पर भी एक ट्रायंगल बनाया गया. दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं और हमें ये प्रूव करना था कि ये जो साइड पर जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया हाफ है डायगोनल पर बनाए गए इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के. तो हमें यहाँ ये पता होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं तो दोनों सिमिलर होंगे और इनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का भी हमें आइडिया होना चाहिए. एक स्क्वायर की साइड अगर ए यूनिट्स है
तो डायगनल की लेंथ होती है साइड रूट 2 या कह लीजिए इस केस में a रूट 2 यूनिट्स। और तब हमने क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी एरिया का रेशो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। यहाँ पर हमने इनकी लेंथ रखी और इससे ये रेशो हमें मिल गया 1/2 और फिर ट्रांसपोज करने पर हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। गेटिंग इट? नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Take the correct answer and justify. Here is question 8. We have been given some options. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is what? यहाँ पर दो triangles लेने हैं. चलिए एक triangle बनाते हैं. Equilateral triangle की बात हो रही है. Let us take this as triangle ABC. और फिर हमें कहा गया है कि D मिड पॉइंट है. लेट अस फर्स्ट नेम इट एज ABC और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो यहाँ पर हम D ले लेते हैं, मिड पॉइंट D. और अब एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है BDE, यानी BD को ही बेस मानते हुए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और बनाना है. सो वी कैन टेक इट इन दिस वे. दिस इज द अदर वन BDE. कुछ इस तरह का फिगर हम सोच सकते हैं. और फिर क्या किया गया है यहाँ पर? रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BDE. BDE का जो एरिया है और ABC, यहाँ पर पहले ABC लिखेंगे और बाद में BDE, इनके एरियाज़ का हमें रेशो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब आप सोचिए कि कैसे अप्लाई करें हम. दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल हैं तो ऐसे में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? ऑब्वियसली दे विल बी सिमिलर. सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो ये इक्वल होंगे, इनके एरियाज़ का रेशो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के. लेट अस प्रोसीड वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज गिवन. ट्रायंगल ABC and triangle BDE are equilateral triangles. D is the midpoint of BC and we have to find the ratio of areas of triangle ABC and triangle BDE. We begin the solution here. Since all equilateral triangles are similar, therefore we can say triangle ABC, this is similar to, just have a look, ABC, EBD we can write. Even though these are equilateral triangles, the order in which we write the names, it does not matter here in this case, but still we have taken care, and so these two triangles are similar. And so now since these are similar, the ratio of the areas of these two triangles will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides. And so here we can say this implies that area of triangle ABC upon, here we have to take area of triangle BDE as per the question. This will be equal to the ratio of the corresponding sides will be BC, here BD, and then whole square. Now have a look. Since D is the midpoint of BC, तो BD जो है BD, it will be half of BC, or we can say that BC is equal to twice of BD. ये हम कह सकते हैं कि ये BC BD की twice है, double है BD की. So here in place of BC we will write it as twice of BD upon BD and then whole square. Now BD and BD will be cancelled. We will be left by 2 upon 1 whole square, and this will be equal to 4 by 1. And so the ratio is 4:1, the required ratio. And so the correct option is 4:1, this option C. And so you can write the correct option is C. The correct option is C. Okay, next we take question 9. Again we have to take the correct answer. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9.
and areas of these triangles are in which ratio we have to find. अब यहाँ पर corresponding sides का ratio हमें पहले से ही दिया गया है 4:9 और अब areas का ratio find out करना है. तो हमें पता है कि areas का ratio क्या होता है, corresponding sides के जो ratio है उसका square ही तो होता है, तो बस इनका square कर देंगे. We write here, since the given triangles are similar, ratio of areas of these triangles will be equal to the ratio of corresponding sides and then square it, square of the ratio of the corresponding sides, or you can write here square of ratio of corresponding sides. In that way also you can present your answer. So, we can write it in that way also, square of ratio of corresponding sides. And now this will be 4/9 is the ratio given, square of it 4 4s are 16 and then 81, and so the required ratio is 16:2. So, the correct option, it is 16:81, that is option D, and so we write here, this implies the correct option is D. Okay, then with this we complete exercise 6.4. I hope all these questions are clear. Practice these questions once again. Okay, then bye for now.